माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो ही। और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम बैक। ओके, सो इन टुडेज वीडियो, जैसा आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, आई एम बेसिकली गोना शो यू हाउ आई कलर माई हेयर. By coloring my hair, I mean how I basically do the root touch up, because अब उम्र हो चुकी है और जो है बहुत सारे सफ़ेद बाल आ चुके हैं. मतलब I do get a lot of white hair. I don't know if you can see. Wait, let me just open my hair. You see all the white hair here, here, and also you see here. बहुत सारे अच्छे खासे काफ़ी सारे बाल हैं जो वाइट हैं. या एनीवे, सो आई वाज जस्ट गोना बेसिकली कलर माय हेयर एज इन do the root touch up, so I thought why not just quickly shoot this video and show you how I basically do this. Now I want to give you a couple of disclaimers. Use Garnier का जो color naturals वाला जो होता है वो मैं यूज करती हूँ. नाउ यू डू नॉट हैव टू यूज स्पेसिफिकली दैट कलर. आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू use this only, but yeah, if yes you want to give it a try, you definitely can give it a try, because I also like it. I'm quite regular with this. Now the second disclaimer that I want to give is that again, if it suits me, it doesn't mean that it will suit you. It might not suit you. It might give you reactions, it might give you itching, it might give you a lot of things. So that's why I'm like focusing on this thing, that if you are going to use this color only because I'm using it, don't do that. Now if you still want to give it a try, now I'll give you a suggestion how to do that. Now for example, you got it from the market, it's very easily available, like it's super easily available. राशन की जो दुकानें होती हैं उन पे भी मिल जाता है. That's also one reason that I really like to use this color, because it's easily available everywhere. So if you are gonna give it a try, what you do is that you bring that color, you buy that color from any store, या जहाँ से भी राशन वाली दुकान या कहीं से भी मिलता है वो आप ले आओ. Now for example, if you know that tomorrow you are gonna give it a try and you're gonna color your roots, then what you do is that एक रात पहले या जब भी you just do a patch test. Patch test का मतलब होता है that आप पहले पूरा सारा का सारा मतलब क्वांटिटी यूज करने से पहले आप बेसिकली हल्का सा यूज करके देख रहे हो उसको कि क्या ये आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं दे रहा है या आपके लिए ठीक भी है या नहीं है. सो आप पैच टेस्ट करो फिर ही. मैं भी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट या स्किन प्रोडक्ट है वो कोशिश करो दैट उसको हमेशा पैच टेस्ट करो, क्योंकि सामने वाले की स्किन को वो सूट करके डजंट मीन इट विल सूट यू ऑल्सो. नाउ आई क्विकली शो यू विच वन डू आई यूज. नाउ आई डू नॉट हैव द प्रॉपर बाहर वाला डब्बा विद इट, बिकॉज इट obviously takes up a lot of space in the drawer जहाँ पे मैं कलर को रखती हूँ. So what I do is पहली बार जब आता है तो मैं डब्बा फेंक देती हूँ and I just keep the products from inside. So I do not have the डब्बा to show you, but I'm definitely gonna put a picture here to just show you how basically the color का packaging looks like from outside. Now from inside you'll basically receive these two things. So the first product you will see here is this tube sort of thing जो अभी काफ़ी सारी ख़त्म हो चुकी है, because obviously I've used most of it. So ये होता है colorant. So this is the colorant. Now this is the developer. So these two things you basically receive in the dabba, and you have to mix these two products to make the mixture what you basically need for your for coloring your hair. Now you can use the full tube if you feel that you wanna, you know, you have a lot of white hair, gray hair, and you think that आपको इतना product लग जाएगा, ठीक है, तो आप you can use it full also. Now you can see that मैंने इसको full use नहीं किया था last time. So what I do is that मेरे सिर्फ जो ग्रे बाल आते हैं वो सिर्फ यहाँ साइड्स में आते हैं और यहाँ पे कुछ आते हैं, ठीक है. तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, दैट आई एक्चुअली यूज दिस पूरा एक डब्बा 4 बार में. इसमें इस तरीके से ना क्वांटिटी ऐसे मेजर करके भी लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इफ यू वांट टू यूज फॉर एग्जांपल 1/4 देन वो यहाँ तक है, 1/2 करना है तो वो यहाँ तक है, 3/4 करना है तो यहाँ तक है. ये बहुत अच्छे से इस पे लिखा हुआ है. सेम विद द ट्यूब ऑल्सो, दैट इफ यू वांट टू यूज फुल तो यू कैन यूज फुल, लेकिन अगर आपको
1/4 यूज करना है तो यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पे हाफ लिखा है, फिर 3/4 लिखा है, इस तरीके से. सो आई ऑल्सो यूज इट दिस वे. नाउ लेट मी शो यू व्हाट ऑल यू बेसिकली नीड फॉर कलरिंग योर हेयर. नाउ ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो कलर है आपका वो चाहिए. देन यू डेफिनेटली नीड अ कोम टू कोम्ब योर हेयर एंड टू ऑल्सो मेक पार्टीशंस, जो आप आगे वीडियो में देखोगे उस तरीके से. सो दो चीजें मैं यूज करती हूँ हमेशा. दिस इज एक्चुअली माई कलरिंग कोम्ब. आई डू नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस. आई यूज इट जस्ट व्हेनेवर आई एम कलरिंग माई हेयर. एंड आई यूज अ हेयर ब्रश ऑल्सो टू बेसिकली, सबसे पहले स्टार्ट जब मैं करती हूँ तो सबसे पहले अपने बाल कोम्ब करती हूँ. एंड दिस इज द ब्रश दैट आई एक्चुअली यूज ऑलवेज टू ब्रश माई हेयर. So for that, and this comb I use basically to do the partitions जब मैं color लगा रही होती हूँ. So for that, now the next thing that you require is a bowl. Remember, do not take any other material. Take a glass bowl. कोई भी कटोरी वटोरी कुछ भी जो स्टील की ना हो, लोहे की ना हो, ऐसी कुछ ग्लास में कोशिश करो आप लोग. उसके बाद then you need a brush. ठीक है. वैसे कलर करने के लिए एक बड़ा चौड़े वाला ब्रश आता है ब्लैक कलर का, जो अक्सर हम लोगों के घर में अक्सर मिल जाता है इंडियन घरों में. ब्लैक कलर का होता है, उससे कई लोग मेहंदी भी लगाते हैं, हिना भी लगाते हैं अपने बालों में. बट आई डू नॉट यूज दैट. आई डू नॉट इवन गेट दैट. आई डू नॉट इवन हैव दैट. वाई? बिकॉज मैं बहुत ही कम जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके अपने कलर लगाती हूँ. सो मुझे डेफिनेटली कोई छोटा ब्रश ही चाहिए होता है ताकि फालतू में बहुत ज्यादा जगह पे कलर ना लगे. सो आई यूज दिस स्मॉल ब्रश. दिस इज एक्चुअली अ फेस पैक का ब्रश. सो इवन इफ यू हैव अ फेस पैक वाला कोई भी ब्रश ऐसा फ्लैट, यू कैन यूज दैट एंड जस्ट मेक श्योर दैट आप उसको बहुत अच्छे से बाद में धो के रखो हाथ के हाथ. एंड then only you use it for the face. And if possible, do not use it for your face. You just keep it aside only for this purpose. Now the next thing you require is definitely something to actually clip your hair. So ऐसे जो क्लचर्स होते हैं ये बहुत आराम से हर लड़की के पास मिल जाते हैं. एंड इफ यू हैव दीज पार्टीशन क्लिप्स तो ये भी बहुत अच्छे हैं. इससे भी आराम से आप पार्टीशन करके बालों को क्लिप कर सकते हो. आई एक्चुअली यूज बोथ द थिंग्स. आई शो यू हाउ. मुझे दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ इन द एंड यू नीड अ वैसलीन. मेरे पास वैसलीन वो जो पेट्रोलियम जेली होती है वो नहीं है. सो आई एम गोना यूज दिस. आई शो यू व्हाई. ऐसी कोई वैसलीन जैसी चीज जो होती है वो आप अक्सर क्या होता है जब आप कलर करते हो तो थोड़ा बहुत इतना नहीं कंट्रोल रहता है अपने हाथ पे, तो हल्का बहुत ब्रश ना कई बार फोरहेड पे लग जाता है, या फिर यहाँ करते हुए कान पे लग जाता है, या फिर कान के पीछे लग जाता है कलर. और फिर उसको जो है एक ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं निकलता है. अगर आप उसको जल्दी ही थोड़ा साफ कर दोगे तो वो निकल भी जाता है. तो इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी चीज है. सो यहाँ इसमें से थोड़ी सी ये मैंने लिप बाम लेती हूँ और इस तरीके से कलर शुरू करने से पहले यहाँ पे लगा लेती हूँ इस तरीके से. सो दैट अगर यहाँ पे मेरा कलर टच भी हो जाए तो मुझे ज्यादा मतलब कलर जो है वो मेरे यहाँ इन जगहों पे चढ़े नहीं. सो ऐसी जो भी जगहें हैं जहाँ मैं चाहती हूँ कलर चढ़े नहीं, मैं यहाँ पे वो लगा लूंगी अपना. पेट्रोलियम जेली यूजुअली काफी घरों में मिल जाती है. अगर वो होगी तो बहुत ही अच्छी चीज है, बट मेरे पास नहीं है और अभी हम लॉकडाउन में है तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लूंगी. ठीक है. इस तरीके से मैंने ये अक्सर मैं जब कलर करती हूँ तो ये कान पे यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया. नाउ ऑल्सो रिमेंबर दैट जब भी आप कलर करने बैठो तो आप कोई ऐसा कपड़ा पहन के बैठो जो जिसके या तो जिसपे कलर लग जाए तो बहुत दुख ना हो. कोई पुरानी टी शर्ट, पुराना घर के कपड़े. ठीक है. और दूसरा कोशिश करो कि वो ब्लैक कलर के हों ताकि अगर कलर लग भी जाए तो वो बहुत बुरा नहीं लगे, दिखे ही नहीं ब्लैक कलर पे. सो आई एम यूजिंग दिस वेरी, मतलब ओल्ड तो नहीं है बट अभी इतना ज्यादा पहनता नहीं है कमल, तो कमल की कुर्ता पहना हुआ है मैंने, तो वो आई एम यूजिंग. ओके. तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को जो है जिस भी सेक्शन में मैं कलर करना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे बाल जो हैं वो ज़्यादा ग्रे हैं, उनको मैं अच्छे से पार्टीशन करके इस तरीके से कोम्ब कर लूँगी. अब मैं प्रोडक्ट अपना जो है वो तैयार करूँगी. मैं सबसे ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे एंड में ही तैयार करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं इसको तैयार करके रख दूँ साइड में बहुत देर तक, विच यू शुड नॉट डू. सो जब मेरा सब तैयारी हो जाता है तभी मैं इसको तैयार करती हूँ. एंड जैसे मैंने आपको बताया था क्वान्टिटी के बारे में उस पर लिखा होता है, आप उसी हिसाब से इसको
मिक्स कर लोगे डेवलपर को और कलरेंट को, दोनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। नाउ मैं धीरे धीरे अपना सेक्शंस लेना शुरू करूँगी और इस तरीके से लगाना शुरू करूँगी कलर को। नाउ आई मेक श्योर नहीं बट आई एटलीस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं जब इस कलर को लगाऊँ तो मैं अपनी जो स्कैल्प है उससे कम टच करूँ, मतलब जो ये नीचे बीच का मतलब मेरा चीर दिखाई दे रहा है, नीचे की जो स्कैल्प है उस पर मैं कम टच करूँ। जैसे अभी आप देखोगे मैं कलर लगाऊंगी तो कोशिश करूँगी कि जो मेरे बाल हैं सिर्फ उन पे ही लगे। आई डोंट माइंड थोड़े से बाल वाइट रह भी जाएंगे तो आई डोंट माइंड, बट आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा दूर रख के लगाऊँ, स्कैल्प पे नहीं लगाऊँ। अल्टीमेटली थोड़ा बहुत लग जाता है बट आई स्टिल ट्राई कि मैं नहीं लगाऊँ। नाउ अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप बिल्कुल जो एकदम अभी नहा के अगर आपने सर धोया है उन पे कलर ना करो। मेक श्योर कोशिश करो कि एटलीस्ट आपके बाल 3-4 दिन के जो मैले बाल होते हैं उन्हीं पे कलर लगाओ। उससे क्या होता है, जो 3-4 दिन में जो स्कैल्प पे आपका जो ऑयल आया होता है वो नेचुरल ऑयल होता है, तो वो एक तरीके से इस कलर का जो नुकसान होता है कि ऑब्वियसली आप अगर केमिकल्स लगा रहे हो अपने किसी भी अपने बालों पे या कहीं पे, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, डेफिनेटली होते हैं। बट ये है कि उससे क्या होता है, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो थोड़ा सा आपके जो स्कैल्प है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपका कलर वहाँ पे लग भी जाएगा तो जहाँ 10 नुकसान होना था वहाँ पे 6 नुकसान होगा, इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी ये मैंने स्कैल्प छोड़ के कोशिश करी है कि मैं इस तरीके से कलर लगा लूँगी, और जहाँ पे मुझे लगता है मेरे ज़्यादा वाइट बाल हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कलर लगाती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है वहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ या फिर बहुत ही कम कलर लगाती हूँ। सो इस तरीके से मेरा ये प्रोसेस रहता है। उसके बाद अनदर थिंग इज़ दैट अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था ग्लव्स पहन के कलर करने का। तो अदरवाइज़ जब आप नया डिब्बा लाते हो तो उसके अंदर अ पेयर ऑफ ग्लव्स भी निकलता है, तो आप उसको पहन के भी कर सकते हो। बट नाउ सिंस मेरा मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया अपने बाल कलर करने का दैट मेरे हाथ पे कलर नहीं लगता है, बिकॉज आई am very experienced now in coloring my own hair. This is it, we are done guys. I just like to comb in the end so that जो भी मैं जितनी भी देर के लिए मैं इसको रख रही हूँ मैं उतनी देर ना मतलब ऐसे मेरे चेहरे पे बाल नहीं आए और थोड़े से संभले रहे, थोड़े देखने में भी ठीक लगे। तो this is how basically I do my रूट टचअप। जो भी मैं यूज करती हूँ कलर, जो भी शेड है वो जरूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करता हो, तो वैसे मैं कौन सा यूज करती हूँ मैं एग्जैक्ट उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। बट यू हैव टू फाइंड आउट द राइट कलर फॉर योर सेल्फ। आप रूट टचअप करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को कोशिश करनी होती है कि हमारा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखे, रूट से ऐसे अलग से नहीं दिखे। सो वी हैव टू चूज अ कलर विच इज़ वेरी सिमिलर टू आर नेचुरल जो हमारे हेयर हैं। जो शेड 1 है 1 विल बी जेट ब्लैक, एकदम से डार्क, एंड 1 to 10 फॉर एग्जाम्पल, सो 10 विल बी लाइक बिल्कुल ही ब्लॉन्ड। सो जितना आप कलर आगे बढ़ाते जाओगे, नंबर बढ़ाते जाओगे उतना ही कलर लाइट होता जाएगा। सो मैं अब कौन सा कलर यूज करती हूँ, कौन सा नंबर यूज करती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एग्जैक्टली देख के सारी डिटेल आप लोग देख लेना। अगर आपका मेरे जैसा कलर है बालों का, आई एम नॉट ऑल्सो वेरी जेट ब्लैक एकदम, बट आई डू हैव ब्लैक हेयर ओनली, बट इट्स नॉट लाइक वेरी जेट ब्लैक, एकदम से नहीं है, थोड़ा ब्लैक ब्राउनिश का मेरा मिक्सचर है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव कलर ऑन माई हेयर लाइक स्ट्रीक्स एंड ऑल दैट, मैंने करवाया हुआ है। उसके अलावा कोई भी अगर चीज हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आई एम गोना जस्ट कीप इट फॉर 10 मैक्सिमम या 10 to 12 मिनट्स एंड आई एम गोना वॉश माई हेयर सिंपल, जैसे मैं शैम्पू करती हूँ वैसे ही, यानी कि पहले कलर हटा दिया बालों में से, धो दिया पानी से, सिंपल पानी से, और उसके बाद शैम्पू लगाया। लाइक यू डोंट हैव टू गो टू द बाथरूम एंड स्ट्रेट अवे पुट शैम्पू। सबसे पहले इसको रिंस कर लेना, जब लगे कलर बालों से उतर चुका है उसके बाद यू हैव टू अप्लाई शैम्पू इन योर हेयर। शैम्पू जैसे हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है, शैम्पू करके उसके बाद मैं कंडीशनर लगाती हूँ। कंडीशनर जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैं वीडियो बना ही रही हूँ बालों पे तो मैं बता देती हूँ, यू शुड नेवर अप्लाई कंडीशनर टू योर स्कैल्प। You should always just put your conditioner onto your growth, यानी ends जो होते हैं रफ होते हैं वहां पे लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते। and then I simply wash my hair with water and that's my coloring routine and this is it. Any other questions if you have, you can always ask me in the comments. So yeah, this is it. I really hope that you enjoyed this video. I really hope that it was helpful for you guys. तो कई लोग जो लोग अभी
यू नो क्वारंटीन के टाइम पे बाहर नहीं जा रहे हैं रूट टचअप के लिए, या फिर कभी भी नहीं जाते हैं और घर में ही वो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हुई। एंड या ऑन दैट नोट आई एम गोना से बाय बाय टू यू गाइस एंड आई एम गोना सी यू गाइस super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.